Hello. Hello, hello. हेलो गुड आफ्टरनून सर Good afternoon, Piyush San. क्या एक बार आप सब वीडियो ऑन कर सकते हैं अपनी? Can everyone can switch on the camera? यस Hi. So, good afternoon, Piyush San. How are you? Nice to meet you. मी टू All right. Aryan San, Paul San, Mohit San, Fiza San, Ishke San. Hi. Paul San, your mic is off. Your mic is off, I guess. Yeah. Oh yeah. Yeah. No So Mohit San is traveling somewhere. Right. Yeah. Nice to meet you, everyone. So can you guys introduce yourself a bit, like what you're doing and how you started learning Japanese or something, or do you know anything in Japanese stuff, Yes, please. Yes, Paul San, can we start with you? What? Can you introduce yourself a bit in English or in Hindi, like what you're doing, how you started learning Japanese, do you know anything in Japanese or not, kind of a stuff, Yeah. Yeah, my name is Paulson and now I'm in class 11. Actually, I'm from Taldagra. In Bangalore, West Bengal. I see. All right. Okay, so like in here, everyone understand Hindi or everyone or anyone is from South? I can't talk to. Yeah, I can understand Hindi. Okay, you understand. Okay. वो गाड़ी मस्त था. ठीक है. So like we have some more students here. So Mohit San can't talk. It's too noisy there. I'm from Haryana. All right, I understand. Hi. We have Rahul San. Rahul San, could you turn on your camera and introduce yourself a bit? Yes. I think we're gonna start the class in like after 3 minutes something because it's still 57 something or it's 2 now. So like you all are in India, right? Yeah. Yeah. Okay. So like Paul-san, why you started learning Japanese? Like why not Chinese or Korean or like why Japanese? You love anime or something? Or No, actually, I want to go Japan. So wanna go Japan? Wow, that's nice. That's nice. Yeah. So what is your stream in 11th? Is it arts, commerce, science? science. Science. Okay. PC, BO, PCM. Is it physics, PCB or PCM? Which one is it? No, it's pure science. I see. Okay. So Ayush-san is writing. Ayush-san, like why you can't speak? Like I know chatting is also okay, but why you can't speak? Ayush-san or Mohit-san is now there. So Ayush-san, can you turn on or switch on the camera? See, if you won't respond, then I don't know if you're listening or not. So you have to respond at least. Yeah. Okay. Yes, please. Ayush Shamshad. Okay. So Pushpinder Singh. हाँ जी सर. Sir, can you hear me? Yes sir. So can you please turn on the camera? थोड़ा सा, no mic भी off है, video भी off है, तो Okay. Yeah. Yes. वहाँ पे भी रात है. पुष्पिंदर सर, आप कहाँ पर हो अभी आप? क्या सर? अच्छा. ठीक है. नारुहोदो ने. और आई वकारी मस्ता. So पुष्पिंदर सर, can you please introduce yourself? थोड़ा introduce करिए अपने बारे में कि सर मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है और सर मैं आगरा से हूँ
और सर मैं ये राम राम जी की जो वीडियोस थी वो मैं बहुत पहले से देखते हुआ आ रहा हूँ। मुझे अच्छा जापानीज लैंग हाँ सर, मुझे जापानीज लैंग्वेज में भी थोड़ा इंटरेस्ट था, तो उससे थोड़ा बहुत मैंने कांजीस भी सीखा और वाह हिरंगाना भी सीखा, हेलो सर। काटाकाना भी सीखा। वाह वाह। हाँ और हाँ सर अभी हाँ। अभी ये है कि मुझे RRJ अकेडमी भी ज्वाइन करना है। अच्छा 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 अच्छा, तो मतलब आपका फिक्स है कि आप N5 स्टार्ट करोगे डेफिनेटली, और जापानीज आपको पढ़ना है, राइट? आई सी ओके। राहुल सर, एक बार आपका देखते हैं कि आपको क्या जापानीज में क्या है, क्या नहीं, थोड़ा इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को जरा। आ, सर हाँ मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, हरिद्वार जिले से हूँ। भाई। और मैं क्लास 11th में पढ़ता हूँ। कॉमर्स अच्छा अच्छा साइट है अच्छा, मेरी। कॉमर्स है, हाँ तो हाँ। मैं भी जापान में आना चाहता हूँ, वैसे भी मतलब वहाँ पे भी रहना चाहता हूँ, अच्छा कल्चर है वहाँ का। तो आपको जापान का कल्चर अच्छा लगता है, इस वजह से आप जापानीज स्टार्ट करना चाहते हो? जी सर। आई सी ओके, ठीक है। और ऋषिकेश, आई डोंट नो ऋषिकेश आप सुन सकते हो नहीं सुन सकते, ठीक है। हाय, बट हम कोशिश करेंगे अपनी वीडियो ऐसे ऑन करें। पीयूष सर, आप कौन सी क्लास में हो? मैं अभी क्लास 7 में हूँ। 7th में हो, तो आप क्या जापानीज पढ़नी है आपको? हाँ, वो मुझे जापानीज अच्छी लगती है क्योंकि वो एनिमे होता है ना, मुझे एनिमे हाँ। देखने वो तो मुझे भी पसंद है। एनिमे पसंद है, मतलब समझ गया। हाँ 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 हाँ, मतलब एनिमे अच्छा लगता है आप सभी को। जी। ठीक है ठीक है ठीक है। फिजसान कैन यू हियर मी? Yes, I can. हाँ जी। तो एक बार फिजसान, आपके बार वीडियो ऑन कर सकते हो या पॉसिबल नहीं है? I mean, is it okay if I don't? आ, ठीक है, बट ये ऑन रहता तो थोड़ा सही से अट्रैक्शन सबके साथ हो रहा है। ये है, अगर कर सकते तो ठीक है, वरना फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो एक बार फिजसान इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा अपने आप को कि आप कैसे जापानीज कर रहे हैं या क्यों स्टार्ट करना चाहते हो, थोड़ा इंट्रोड्यूस करिए। हाय। So, I mean, hi, I'm Fiza. I'm from what, Jodhpur, Rajasthan. हम्म, I can actually talk in Hindi if anyone wants. हाँ हाँ, Okay. हिंदी हिंदी ठीक है, ओके। हाँ So, हाँ like a Hindi or can I speak in English? हाँ, हिंदी ठीक है, हिंदी में बात कर सकते हैं। ठीक है, हाँ मैं फिजा हूँ and I'm from जोधपुर। जोधपुर से हूँ मैं। हाँ And I started learning Japanese. Japanese मैंने सीखनी शुरू करी थी because yeah, anime. I mean, सब लोग यही बोलेंगे. Why not? Because या why not? एनीमे So, पसंद, ठीक है। started for fun, but now I'm kind of serious about it. सो आपने अभी तक कुछ पढ़ा, मतलब कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया है जापानीज में क्या है, कैसा होता है, ऐसे 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 ऐसे? थोड़ा बहुत हाँ, मैंने आई ट्राइड गूगलिंग, गूगल करके, और मे बी यूट्यूब आई टुक हेल्प। वाह, यस। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। मकारी मस्ता, ठीक है। तो लगभग हम देखा जाए तो सबका एनीमे में इंटरेस्ट है, और प्लस जापानीज जाना है, थोड़ा जी मनी थोड़ा जॉब का है ना, ऐसे ऐसे है। ठीक है, जी। तो अभी हम क्या काम करेंगे, अभी हम क्लास में थोड़ा बेसिक्स देखेंगे। जापानीज में किस टाइप के बेसिक्स होते हैं, क्या होता है, कितनी स्क्रिप्ट्स होती हैं, किस स्क्रिप्ट का क्या यूज होता है और क्यों यूज होता है, ठीक है ना, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ओके हाय, तो पहले हम एक बार, मैं आपको ना एक स्लाइड शेयर करूंगा यहाँ पे भी, ठीक है। हम एक बार उस स्लाइड को देखेंगे और देखेंगे जापान के बारे में और जाने, ठीक है। हाय, तो ठीक है, ये है हमारी पहली स्लाइड जिसमें तुम देख सकते हो कि जापान का क्या है क्या नहीं है। जापान का मैप है, जैसे इजी है, ठीक है। इसमें हमें एक चीज होती है, इसमें क्या कहते हैं, जापानीज के अंदर आपके पास 3 स्क्रिप्ट्स मिलेंगी। 3 काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स होती है जापानीज में, जिसमें पहली स्क्रिप्ट का नाम होता है हिरागाना, काताकाना और कांजी। अब इन 3 स्क्रिप्ट को क्यों लिखते हैं, तीनों का क्या काम है क्या काम नहीं है, वो देखते हैं। हिरागाना के अंदर वो जापानीज के वर्ड्स आएंगे जो जापानीज लोगों ने अपनी ही कंट्री में बनाए और अपनी कंट्री में ओरिजिनली उन्होंने फॉर्म करे और अपनी ही स्क्रिप्ट के अंदर लिखा। उन जैसे वर्ड्स को हम हिरागाना में लिखते हैं। अब हम बात करते हैं कि काताकाना में क्या होता है। काताकाना के स्क्रिप्ट के अंदर वो वर्ड्स आते हैं जो जापान कंट्री बाहर कंट्री से लोन वर्ड्स लेती है, बाहर की कंट्रीज से लेती है, ठीक है। उसको बोलते हैं, जैसे कि तुम जापानीज में चाय बोल सकते हो, चाय चाय। अभी चाय है ना, ये काताकाना में लिखेंगे
क्यों लिखेंगे? क्योंकि जापान का वर्ड नहीं है, ये है तो जापानीज लैंग्वेज में, बट ये लिया कहाँ से? ये बाहर की कंट्री से लिया। अब बाहर की कंट्री से जब कोई वर्ड लेंगे तो उसको हिरागाना में नहीं लिखेंगे, उसको काताकाना में लिखेंगे, ठीक है। और जिस जिस वर्ड के अंदर हिरागाना होगा उस वर्ड के अंदर कांजीज भी होगी, अपार्ट फ्रॉम द पार्टिकल्स, एडवर्ब्स और तुम्हारी वर्ब्स में जो एंडिंग होती है, दैट्स इट। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे रेड कलर में लिखा हुआ है हिरागाना, तो ऊपर सेंटेंस में रेड कलर में जितना लिखा है ना वो सारा हिरागाना है। अभी आपको नहीं समझ आएगा लेकिन जस्ट एग्जांपल है। ब्लू कलर में जितना लिखा है वो सारा काताकाना है। अब ब्लू कलर में अगर आप पहला वर्ड देख सकते हो, ये लिखा है सेना। से है या सा है, कौन बताना चाहेगा? अगर किसको थोड़ी बहुत भी स्क्रिप्ट पता है तो वो थोड़ा बताइए कि इसमें क्या लिखा है मैंने। ये से लिखा है, से या सा? से ना। तो ये भी देखना है कि किसको यहाँ पे स्क्रिप्ट का आइडिया है, किसको नहीं है। दिक्कत क्या होती है, हिरागाना में कुछ सिलेबल ऐसे हैं, हिरागाना में कुछ सिलेबल ऐसे हैं जो काताकाना के अंदर भी सिमिलर है। तो अगर आप हिरागाना देखोगे ना, हिरागाना में सेम ऐसा सिलेबल आता है जो कि से मिलता जुलता है, लेकिन वो है नहीं। तो कंफ्यूजन दूर ना हो तो इसलिए हम काताकाना में भी कुछ इस तरीके से लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं सा। सा। तो यहाँ पे किसने बोला था सा है? ये मैंने बोला था। ठीक है, तो आपने बोला था तो आपने सही बोला, ये सा लिखा है तो ये क्या बना? साना, सान। ठीक है, तो साताई। हाँ जी, साताई। ना ना ना, ई नहीं है, ई नहीं है। अभी हम देखेंगे स्क्रिप्ट, हम देखेंगे उसका क्या रूल होता है, क्या रूल नहीं होता, अभी वो हम सारा देखेंगे। अभी हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ अभी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कि स्क्रिप्ट में क्या होता है क्या नहीं होता है। वकारी मास्ता का हाई। तो ये कलर्स है। अब बात करते हैं कांजीज में क्या होता है। अब कांजीज क्या है? कांजीज जापानीज लोगों ने थोड़ी बहुत चाइनीज से लिया, ठीक है। अब उसकी दो तरीके की रीडिंग्स होती है। एक रीडिंग होती है कुनियोमी, दूसरी होती है ओनियोमी। जब कांजी को हम डेप्थ में पढ़ेंगे तो उसका भी पता लग जाएगा कि किसको क्या पढ़ना है, ठीक है ना। ये हमारा बेसिक स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर है जापानीज लैंग्वेज का। जिसको क्लियर नहीं होगा ना वो प्लीज बताने का। ठीक है, तो मोहित सान को काफी हद तक ये सारा हिरागाना पढ़ लेते हैं, दैट्स वेरी नाइस। साना है वो, ठीक है, वेरी नाइस। अब हिरागाना देखते हैं, हिरागाना में क्या है क्या नहीं है। ये आपको कुछ इस टाइप का हिरागाना चार्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा जूम करोगे जब आपके पास ये जैसे होंगी तो इसमें आप हिंदी के जो वर्ड्स है, जो सिलेबल है, वो भी आप उसकी साउंड में देख सकते हो और इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो हिरागाना के अंदर हमारे पास 26 होते हैं लेटर्स। 26 या 56? 56, 26 तो इंग्लिश में होते हैं, ठीक है। सो हिरागाना में 56, काताकाना में 56 और कांजीज में तो मतलब स्टार्टिंग में बात करें ना तो कांजीज में हमारे पास कुछ 50,000 थे, लेकिन बहुत टाइम पहले 50,000 बहुत ज्यादा थे। लेकिन अब इतना मॉडिफिकेशन कर दिया जापानीज में, इतना मॉडिफिकेशन है कि अब वो 50,000 से सीधा 5,000 6,000 में आ गए, ठीक है ना। अब जापानीज लोगों को 5,000 के आसपास पता होंगे, उनको 4,000 भी पता होगा, 4,000 5,000 के अराउंड समथिंग पता होगा, ठीक है। तो कांजीज है, कांजीज हम N1 तक जब भी हम करेंगे ना तो हम आराम से 4,000 के आराम से हम कांजीज रीड कर लेंगे, याद कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये काताकाना है। अब जो वर्ड आपने बाहर की कंट्री से लिया वो आप काताकाना में लिखोगे और जो नहीं लिया वो हिरागाना में लिखोगे, ठीक है। फिर आती है हमारी कांजी। कांजी अभी हमने बताया था कांजी में क्या होता है, ओनियोमी होता है और कुनियोमी होता है। अब ये ओनियोमी और कुनियोमी होता क्या है, ठीक है, एक बार हम ये भी देख लेते हैं। मैं आपको एक वर्ड शेयर करके दिखाता हूँ, तो ठीक है। तो अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो कांजी है, कांजी की 2 टाइप्स की रीडिंग होती है, ठीक है। पहली जो रीडिंग होती है कांजी इसके अंदर वो होती है तुम्हारी ओनियोमी, दूसरी होती है कुनियोमी। अब जो ओनियोमी होती है ना वो चाइनीज रीडिंग होती है, ठीक है, चाइनीज रीडिंग होती है। और जो हमारी कुनियोमी होती है वो हमारी जापानीज रीडिंग होती है।
ठीक है। अब ये चाइनीज रीडिंग, जापानीज रीडिंग क्या है क्या नहीं है, इसको हम क्यों पढ़ना है, पढ़ना जरूरी है या नहीं है, तो मैं बताना चाहूंगा ये पढ़ना जरूरी है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल सा बेसिक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं ये कोई एक रैंडम पिक्चर है, अब हमें नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, तो मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ ओकाने। अब ओकाने मतलब क्या होता है, मनी, है ना, ओकाने का मतलब होता है मनी। अब ये पता है, अब ये जो मनी है ये कौन से रीडिंग में है, ये कुनियोमी में है या ओनियोमी में है, ये है कुनियोमी में, क्यों है वो भी मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। अब ये कुनियोमी में क्यों है, कुनियोमी होते हैं जापानीज रीडिंग। तो जापानीज रीडिंग का मतलब क्या होता है, जब जापान ने अपनी कंट्री में एक वर्ड बनाया तो उन्होंने अपनी कांजीज की एक प्रॉपर नाम दिया, एक पिक्चर बनाई उसको नाम दिया ओकाने, पिक्चर को नाम ओकाने दे दिया और उसका मीनिंग उन्होंने दिया, तो उसको हम पढ़ते हैं जापानीज रीडिंग में। लेकिन चाइनीज में भी तो ये कांजी है, ठीक है, तो तब क्या करेंगे जब इसके बाद एक और कांजी ऐड हो जाएंगी, क्या तब भी हम इसको ओकाने पढ़े, तो मेरा कहने का मतलब ये है उस केस में हम इसको ओकाने नहीं पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब चाइनीज रीडिंग हमारी तभी यूज होती है जब हम कॉम्बिनेशंस यूज कर रहे हैं। अभी कॉम्बिनेशंस क्या होता है, किसको पता है व्हाट इज कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशंस क्या होता है, एनी आइडिया ना, हाय राहुल सान या फिर शिकेश सान, अनीश सान, ये क्या होता है ये, नो, ठीक है, चौथा मार्केट में, तो ये है हमारा, ठीक है। अब कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है जब हमारे पास एक से ज्यादा, सॉरी ठीक है, कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है जब हमारे पास एक से ज्यादा कांजीज ऐड होती है एक वर्ड के अंदर। जब काफी ज्यादा सिलेबल एक वर्ड बनाते हैं ना, वोकैबुलरी बनाते हैं, तो उस केस में हम उसको चाइनीज रीडिंग में पढ़ते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, एक वर्ड है फ्राइडे, लेट्स टेक फ्राइडे, और फ्राइडे को जापानीज में हम पता है क्या बोलते हैं, किनयोबी बोलते हैं, ठीक है, किनयोबी, हाँ जी किनयोबी बोलते हैं। खैर यो में लॉन्ग साउंड आता है वो बाद में देखेंगे कैसे कैसे नहीं है, किनयोबी होता है। अब किनयोबी की कांजी क्या होगी, पहले गोल्ड की कांजी, यस ये हुई, ठीक है। अब अगर आप इसमें देख सकते हो तो इसमें ये सेम कांजी आ रही है जो कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ी, ठीक है, लेकिन इसमें तो हम नीचे किन करके कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ किन करके पढ़ रहे हैं, तो ऊपर में ऐसा क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, तो वो हमारे पास क्वेश्चन आता है। तो इसमें कहने का मतलब है कि अगर आप इस कांजी की चाइनीज रीडिंग पढ़ते हो तो उसको या तो हम किन बोल सकते हैं या गिन बोल सकते हैं, किन या गिन दोनों में से कोई भी है, वो डिपेंड करेगा कि क्या वर्ड है क्या वर्ड नहीं है, ठीक है। मेरा संदेश जो इसका वकारी मस्त था, हाई, ओके डन डन डन। अब ये तो हमारा हो गया ओकाने का किन्योबी, ओकाने का हमारा जो बना वो किन्योबी में बना, गिन्योबी नहीं बोलते, सिर्फ किन्योबी बोलते हैं, वो हमें पता लग जाएगा जैसे जैसे हम वो कैब याद करते रहेंगे, ठीक है ना, वकारी मस्त है, हाई। सो यहाँ पे भी निखिल सान भी है, सो निखिल सान कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ अ बिट कि आप कैसे जापानीज कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं, हाँ जी मत, हाई। तो निखिल सान कैन यू हियर मी, हाई, मे बी इंटरनेट या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये है, तो ये हमारा कांजी का हमारा इसमें फॉर्मूला ऐसे लगता है कुछ, किसको समझ नहीं आया तो प्लीज पूछना, हम फिर से इसको पढ़ाएंगे भी। अब हम बात करते हैं कि इसको पढ़े कैसे, जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये कुछ कांजीज है, ये कुछ कांजीज है, तो कांजीज को हम इसको पढ़ रहे हैं ऐसा, नीची 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 मतलब होता है दिन, ये कांजी है, इसको पढ़ते हैं हॉन, हॉन मतलब बुक, यौन मतलब फोर, हितो मतलब पीप, स्की मतलब मून, ठीक है। पोल सान ये क्या लिखा है, ईयर को,
ईयर को क्या बोलते हैं? नेन, 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 ने की जगह ने, नेन, नेन। हाय, नेक्स्ट, ह्याकु। ह्याकु का मतलब होता है 100। 100, ये कांजी देख रहे हो आप, ये कांजी हमारी इसी हिसाब से चलती रहेंगी, जो भी हम पढ़ते रहेंगे। अब ये यहाँ पे निचियो भी लिखा है, निचियो भी मतलब संडे होता है, ठीक है। इसको कौन पढ़ेगा? तो भाई पुष्पिंदर सान पढ़ सकते हो ये क्या लिखा है, मतलब इंग्लिश में? निहोन मतलब जापान। निहोन मतलब जापान, शिगात्सु मतलब अप्रैल, जी, इंडोजिन, इंडोजन मतलब इंडियन हूँ मैं। यस यस, माइतोशी, माइतोशी मतलब एवरी ईयर। प्रत्येक साल। अगर तोशी को हटा के नीची लगा देंगे तो माई नीची बन जाएगा। माई नीची क्या होता है? एवरीडे। 300 का हेलो सर, सर। सर वैसे 300 होता है सान ब्याक को, लेकिन साम नहीं लगाते कि वो भी एक्सपेक्टेशन है उसमें भी। यस यस, उसमें है को नहीं लगता, उसमें ह का ब लग जाता है ना। जी 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 सर। यस 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 यस, वेरी नाइस वेरी नाइस। सो वही सर मैं बोलना चाहता था, हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए। वो सान ब्याकू है ना, वो क्या साम ब्याकू होता है ना, हाँ हाँ तो क्या वो सान ब्याकू होता है, SAN? हाँ जी, ये SAN होता है, सान। इसको सेन की जगह सान पढ़ते हैं जापानीज वर्जन में। सान ब्याकु, सान ब्याकु, ठीक है। हाय, शोकुजी, शोकुजी होता है शोकुजी, मील या डिनर, शोकुजी, ठीक है। तो एक बार ये होने से पहले ना हम एक बार इसकी थोड़ा काउंटिंग्स वगैरह भी देखेंगे कि जैपनीज नंबर्स यहाँ पे हमारे स्टार्ट हुए, ठीक है। अब जैपनीज नंबर तो हमारे सिंपल है कि इसमें क्या लिखा है, इची। 1 इसको एक बार हल्का सा जूम करता हूँ ताकि आप सब देख सकें, ठीक है। एंड देन आप 27 सब इसको, गोरोकू नानाहाची यूजू। हाँ हाँ हाँ, तो मतलब आपको ये काफी लोगों को ये पता है इसमें क्या है क्या नहीं है, आता है सर ये तो। ठीक है, ये आता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि काउंटिंग जो होती है जापानीज में उसको क्या करेंगे। काउंटिंग में जापानीज किन किन को नहीं आती है? मुझे 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 नहीं आती यार। ठीक है ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम 1 लाख तक काउंटिंग देखेंगे। आपको सिर्फ 1 से लेके 10 तक याद करनी है और बाकी सारा फॉर्मूला का काम है, ठीक है। बाकी सब फॉर्मूला चलेगा इसके अंदर। ऑलराइट, हाय। अब यहाँ पे हमें पता है कि इचिनी सान होता है, इचिनी सान, ठीक है ना। इचिनी सान, यौन या फिर शी जैसे ठीक लगे, फिर गो, रोको, नाना, साची, क्यू, वो जो, ठीक है। ये हमारी एक नॉर्मल काउंटिंग है। अब हम बात करें कि 100 को क्या बोलेंगे। 100 को बोलते हैं आपको ह्याकु, 200 को नी को एग्जैक्टली नी ह्याकु बोलेंगे। तो कुछ नहीं करना, ह्याकु से पहले बस नी लगाना है, दैट्स इट। और ये हमारा चलेगा 900 तक, ठीक है ना। अब 300 है, इसमें एक्सेप्शनल है, इसमें ह नहीं लगता, इसमें ब लगता है, सान ब्याकु, ठीक है, सान ब्याकु। अब फोर्थ में क्या लगेगा, फोर्थ में क्या लगता है, कोई बताना चाहेगा? योन ह्याकु, योन या यस, योन ह्याकु। फिर हमारा होता है गो ह्याकु, ठीक है, रोकू ह्याकु, नाना रोकू, हाँ जी, नाना ह्याकु, हाची याको हप ह्याकु, आप्याको, सॉरी। हप ह्याकु। रोकू ह्याकु की जगह क्या आएगा, रोक ह्याकु, है ना। ये एक्सेप्शनल है, जो एक्सेप्शनल है ना उसको मैं बोल्ड प्लस अंडरलाइन करता हूँ, ठीक है। हप्याको को भी बोल्ड प्लस अंडरलाइन, साम्याको का भी सेम फॉर्मूला है, ठीक है। हप्याको हो गया। उसके बाद हमारा इसमें क्या आएगा, हप्याको के बाद क्यूयाको, ठीक है। ये हमारा बन गई काउंटिंग्स। अब हम यहाँ पे एक बार बात करते हैं कि इसमें अगर काउंटिंग्स बोलना चाहे तो 1
54 से करने से पहले हम पहले देखते कि इची निशान के अंदर हम 99 तक कैसे बोलें, ठीक है ना। अभी हमने सिर्फ 2 चीज सीखी है, अब इसी को देखते हैं कि हम कैसे बोलेंगे 99 तक। हम बात करते हैं एक छोटे सी चीज की, 15 को हम कैसे बोलते हैं, 10 प्लस 5। अब इस 10 क्या होता है, जो होता है, 5 क्या होता है, वो होता है, बन गया जो वो 15, ठीक है। अगला 28, तो 28 में क्या होता है, 2 इंटू 10 प्लस 8, ठीक है ना। 2 इंटू 10 सर प्लस नीजू हाथी। नीजू हाची, यस 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 यस, नीजू हाची, वेरी नाइस, नीजू हाची। अब हमें 85 तक का देखते हैं। 85 में क्या होगा, 8 इंटू 10 प्लस 5, तो ये क्या बनेगा, हाची। 8 को बोलते हैं हाची, 10 को बोलते हैं जू, 5 को बोलते हैं गो, हाची जू गो, ठीक है। वकारिमास्ता का हाई। ओके, नेक्स्ट एक बार आप फिर से बताएंगे, एक लास्ट बताएंगे ये वाला। हाँ, 98। हाई फिजा सान, क्या बताना चाहोगे, 98 को क्या बोलते हैं? जो हाची। ना, ध्यान से देखिए, 98 है। यस 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 यस, क्यू जू हाची। हाची, क्यू जो हाची। तो हमारी 99 तक कंप्लीट है। 100 में अभी हमने पढ़ा हयाको होता है, अभी हयाको वाली लाइन भी देख लेते हैं। 1 2 5 लेट्स से, अब 100 तो है ही हमारे पास। याको 100 में प्लस क्या करेंगे, 2 करेंगे, 2 में इंटू करेंगे 10 और ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे प्लस 5 में, अब इसको सिंपल लिख देंगे। याको निजुको। ध्यान से देखिए, जल्दीबाजी नहीं, ध्यान से देखिए, हयाको आ गया, 2 को नहीं बोलते हैं, याको नि ठीक है। फिर 10 बोलेंगे जो, फिर गो, गो। हयाको नीजू गो, ठीक है। 278, सो 200 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 8। हम ये मत देखिए किसमें क्या माइनस लग रहा है, क्या प्लस लग रहा है, बट इन सबको खोलना है। 278 को जितना हो सके ना उतना स्ट्रेच करना है बस, ठीक है। हाई, अब इसका कौन बताना चाहेगा? सर नी ह्याकू नाना जू हाची। नीहाकु नाना जू हाची, यस 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 यस, नीहाकु नाना जू हाची तो मत कुदासाई, नाना जू हाची, नीहाकु नाना जू हाची। तो अब हमें ये पता लग चुका है 999 तक। एक क्लास देख लेते हैं, 894, ठीक है। पहले कौन बताएगा? हाँ जी बताइए, एनीवन, राहुल सान, रोहित सान, कोई भी। क्यू याको हाची जू योन। यस, क्यू ह्याकु हाची जू योन, क्यू ह्याकु हाची जू योन। अभी हमारा कंप्लीट है। अब बात करते हैं 1000 की। 1000 को हम बोलते हैं सेन। नी सेन कैसे बना? सेन तो 1000 है, बस सब में नॉर्मल काउंटिंग लगानी है। इसमें क्या है, इसमें एक्सेप्शनल है, सान सेन की जगह सान जेन बन जाएगा, सान जेन। अंडरलाइन कर दी मैंने इसको ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट तो इसमें आई 4000 योन सेन, ठीक है ना, वो सेन। वकारिमास्ता का मीना सान। हाई नाना सेन, हाची सेन।
अब ये हाची सेन है ना, हाची सेन नहीं होगा, यहाँ पे एक्सेप्शनल है, मैं बताते हैं। हाची सेन का क्या बनेगा, इसको करेंगे इरेज, तो यहाँ पे लिखेंगे हासन, जो एक्सेप्शनल है वो यस 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 हाई। अब यहाँ पे काउंटिंग देखते हैं 1478। लेट्स से इसको कैसे बनाएंगे, पहली देखिए पहली डिजिट क्या है, 1000 की है तो सेन लगाएंगे, सेन। अब जैसे आपने ऊपर 478 को किया था वैसे आप इसको भी करिए, जैसे आपने ऊपर 3 डिजिट्स की थी ना, वैसे इस वाले की भी 3 डिजिट्स करिए, ठीक है। सो 1478 क्या बनेगा, सेन। अच्छा 400 भी तो है, यौन है आपको। अब 70 है, 70 को कैसे बोलते थे, नाना जो बचा क्या, हाची। यौन सेन, यौन है आपको, नाना जो हाची। क्या सबको समझ आया, क्लियर है यहाँ तक? हाई चलो मारते ये तो मीना 371। अच्छा 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 अच्छा, अरे ये मैं थोड़ा भूल गया बताना, मीना सान एवरीवन, ठीक है। वकारिमाशिता का, डू यू अंडरस्टैंड वकारिमाशिता का, डू यू, और सा नेबर इसको बता के भूल के दिखाइए से। वकारी मस्ताका। हाँ जी वकारिमाशिता का। आंसर चोत्तो मात्ते मींस वेट ए मिनट। यस यस, चौथो मात्ते को दसा है मतलब प्लीज वेट फॉर अ वाइल। चौथो मात्ते को दसा है प्लीज वेट अ मोमेंट। ठीक है, प्लीज वेट फॉर अ वाइल, इज इट क्लियर? जी जी। सो इसमें अब हम बात करते हैं 1478 है ना, 17846। हाँ जी कौन बताएगा इसका, कौन है लेते हैं? हाँ जी नाना या कोई सेन नाना याकू योन जू रोकू। 3000 को क्या बोलते हैं, 3000 सेन। अच्छा सांसेन, यस सांसेन। सांसेन। नाना है आपको योन जो रोको। योन जू रोकू। सांसेन नाना याकू योन जुरोको, योन जुरोको। minasan, do you understand what minasan? हाई। अभी सांसेन क्यों बना, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना एक्सेप्शनल, तो ये वो एक्सेप्शनल है, ठीक है। सांसेन हाईलाइट कर दिया, सांसेन हाई जल्दी। अब बात करते हैं 10,000 की, ठीक है। 10,000 को बोलते हैं हम इची, और बाद में मान लगाना है। इसमें आपकी सेम काउंटिंग चलेगी जो कि आपके 1 से लेके 9 तक चली थी, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। काउंटिंग के बाद मान लगाइए, वो हमारा बन जाएगा 10,000 के अंदर, ठीक है ना। अब एग्जांपल देके देखिए, जैसे कि इची मान 20,000 को क्या बोलते हैं, नीमान, सान, योनमान, ठीक है ना, रोकुमान, नानामान। जो भी बात नहीं कर रहा वो अपने माइक ऑफ कर, जो भी बात नहीं कर रहा है, नानामान, हाचीमान, जो भी बात नहीं कर रहा है, हाँ जी हाँ जी हाई। क्यूमान, क्यूमान तक हम करेंगे। क्यूमान क्या होता है, 90,000,
ठीक है, ये होता है 90,000। अब हम इसकी काउंटिंग करके देखते हैं। लेट्स से 1,400, 10,000, 14,000, हाई, इसको कौन बना के दिखाया है? पहले मैं बनाता हूँ, फिर बाकी कितनी ना बना, ठीक है। अब 10,000 है, 10,000 को क्या बोलेंगे? इची मान। अब क्या बचा? 4,000 बचा। 4,000 क्या बोलते हैं? योनसेन। अब 500 बचा, 500 को क्या बोलते हैं? वो है तो वो है आपको। अब बचा 80, 80 को क्या बोलते हैं? हाचीजू, ठीक है ना? नाना हाई, हाची जू एंड देन नाना, ठीक है। वकारी मास्ता का मीना-सान, वकारी मास्ता का बोले तो डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड, ठीक है। हाई, हाई। नाना है कुयोंचू, ठीक है मोहित सान, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके, जा एक मैं देता हूँ फिर से, लेट्स सी कि अब इसको कौन आंसर देता है। कोई भी कर सकता है जिसको पता है। 7,400, ठीक है, इसको बताइए। हाई, नाना मान योन वेरी हयाकू नाइस। शोजो हाची। लेकिन ये तो 4 डिजिट है। अब मैं इसमें एक डिजिट और लगा देता हूँ, अब बनेगा ये मान के अंदर, ठीक है ना? अब बनाइए फिर से, अब बनाइए। हाची हाची मान नाना हयाकू। नाना हयाकू क्यों होगा? वो तो 100 के साथ लगता है, तो नाना सेन होगा, ठीक है। हाची मान नाना हयाकू। नाना सेन, हाचीवान नाना सेन योन हयाकू क्यों हयाकू, ठीक है। शोजो हाची। हाँ जी, योन हयाकू के बाद गोजू शोजो गोजू मेरी हाची। 皆さん大丈夫ですか? 大丈夫 What is 大丈夫? 大丈夫होता है Is it all right? 大丈夫ですか? とっても待ってね。大丈夫ですか? 大丈夫ですか? 大丈夫ですか? Is it all right? ये सब आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये छोटे छोटे सेंटेंस फिलर अगर आप थोड़ा सा उसमें लाते हो ना कन्वर्सेशन के अंदर, तो आपको काफी हेल्पफुल मिलेगी जापानीज में बात करने के लिए भी, ठीक है ना मेरा? हाय, वकारिमास्ता, दाइजोबु देसु। अगर सेंटेंस के एंड में का लग रहा है तो वो हमारा क्वेश्चन मार्क बनाएगा, ठीक है। का, ये जो का आप यहाँ देख रहे हो ना, ये दिस इज अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हाई, योनेहाकु दोजु हाची, इजी है। 90,000, 95,768, कौन बताएगा? हाई देवा, हाँ जी। ह्यूमन, गोसेन, समझ आ रहा है ना आपको? पॉल सान, निखिल सान, समझ आ रहा है ना? हाई, ह्यूमन, गोसेन, नाना हैकु, रोकुजू हाची, ठीक है ना? ये कैसे बन रहा है, समझ आ रहा है? ये बन कैसे रहा है, ठीक है। हाई, वकारिमास्ता। जा सगी, ये है हमारा छोटा सा काउंटिंग्स का। तो हमारी काउंटिंग्स कहाँ तक हुई है हमारी? अब 90,000, 99,999 तक हमने अपनी कांचीज को कंप्लीट किया है, ठीक है ना? और जिसमें से हमने थोड़े बहुत ग्रीटिंग्स कवर करे हैं ये वाले, ठीक है। हाई, ठीक है।
रोहित सान, क्या आप ये रीड कर सकते हो, ये क्या लिखा है? डू यू अंडरस्टैंड का? वकारिमास्ता का। हाँ जी, और लास्ट लाइन पढ़िए। चोत्तो माते कुदासाय। यस, चोतो माते को दसा है। तो रोहित खान, आप क्या हिरागाना पढ़ सकते हैं? नहीं। नहीं पढ़ सकते, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मतलब स्टार्ट किया कभी आपने पढ़ना? हाँ, अभी हल्का सा बस स्टार्ट किया है। ठीक है ठीक है ठीक है। वकारिमास्ता, वकारिमास्ता, ओके। वेट फॉर अ व्हाइलですね。はい、今 OK です。ちょっとオートコレクションはやばいですね。はい。じゃあ皆さん次。अभी यही हमने काउंटिंग्स देखी है, जो भी काउंटिंग्स है ना, यही काउंटिंग्स हमने देखी है एज इट इज की एज इट इज, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम। तो फ्रूट्स नेम में क्या आता है? एप्पल, अपुर, अपुर, अपुर मतलब होता है सेब, एप्पल। बनाना का बनाना ही होता है, बनाना। इंग्लिश में तो बनाना या बनाना होता है, आई डोंट नो, तो जापानीज में होता है बनाना। मैंगो का बनता है मांगो, मांगो। ऑरेंज का बनता है ऑरेंजी। सर हाँ जी, वो मैं कह रहा था कि ऑरेंज मिकान नहीं होता? मिकान भी होता है। अब देखिए, मिकान हम लिखेंगे हिरागाना में, ऑरेंजी लिखेंगे काताकाना में, दोनों का वर्ड सेम है। क्यों लिखेंगे? ऑरेंजी किससे लिए? बाहर की इंग्लिश कंट्री से लिए है ना, जो इंग्लिश बोलती है ऑरेंज, तो उसको चेंज अपने हिसाब से चेंज करके ऑरेंजी में लगाया, जो कि मिलता जुलता लग रहा है ऑरेंज से, है ना, ठीक है। तो उस हिसाब से ऑरेंज भी बोल सकते हो और मिकान भी बोल सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाई, नेक्स्ट स्ट्रॉबेरी, इचिगो, इचिगो, इचिगो होता है वाटरमेलन, वाटरमेलन होता है सुइका, 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 ठीक है। हाँ जी, रिंगो या सुइका। यहाँ तक आप सबको एक बार क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? हाय हाय। अभी अमन सन, अमन सन, कैन यू हियर मी? हाय, तो थोड़ा देखने के लिए आए थे कि क्या चल रहा है, राइट ने?いいですね、いいですね。わかりました。じゃあ次、はい、वाटरमेलन भी डन। अब हम बात करते हैं कि इसमें वेजिटेबल्स में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। वी हैव कैरेट, हम कैरेट को बोलते हैं जापानीज में निंजिन, निंजिन, निंजिन। एग प्लांट, एग प्लांट को हम बोलते हैं नास। ये ना हमने पढ़ा था ना, साना, जो हमने पहले एक वर्ड पढ़ा था साना, जिसका लड़की का नाम था साना, तो इसको हम बोलते हैं नस। नस मतलब बैंगन जिसे कहते हैं, ठीक है। टोमेटो होता है इंग्लिश में, टोमाटो होता है जापानीज में, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा चुकंदर आता है, जिसको हम बोलते हैं बीटरूटो, बीटरूटो, ठीक है। बीटरूटो काफी कूल लग रहा है सुनने में, तो बीटरूटो खाना है क्या? हाँ जी, खाना है। बीटरूटो। लेमन, लेमन को जापानीज में बोलते हैं रे, रेमोन, रेमोन, ठीक है। पोटैटो इंग्लिश में, जापानीज में इट विल बी जागाइमो, जागाइमो या फिर पोतातो, लेकिन जगाइमो बोलिए, कोई बात नहीं, कोई कुछ भी चलेगा। जगाइमो होता है पोटैटो का, ठीक है ना। पोटैटो, वी नो व्हाट इज पोटैटो, पोटैटो इज लाइक आलू और समथिंग, पोटैटो आलू, क्लियर है? नेक्स्ट, एनिमल्स नेम। स्टार्टिंग में ना हमें ये सब चीजें करनी जरूरी है। अब इसमें देखते हैं कि कैसे यूज कर सकते हैं। कैट को वी से नेको, नेको, कैट। रेड को क्या कहते हैं, कोई बताएगा? रेड, नेजुमी, 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 यस यस, नेजुमी, नेजुमी, यस, नेजुमी, नेजुमी। फिश को सकाना,
सकाना नहीं, साकाना, 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 यस, साकाना। इनू, इनू मतलब कुत्ता, अभी जिसने बोला, ठीक है। इनू डॉग, कुत्ता, पिग कुत्ता, इनू होता है। पिग क्या होता है? बूता, बोता, बूता, बूता, बूता। नेक्स्ट, बर्ड को बोलते हैं तोरी, 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 हाँ जी, कितना तोरी, हाँ जी। तोरी थोड़ा सिमिलर लग रहा है, हमारी इंडिया में एक सब्जी है, क्या? ठीक है। तोरी हम उसको बोलते तो सिमिलर लग रहा है काफी, ठीक है। सिर्फ वर्ड सिमिलर है, मीनिंग जमीन आसमान का फर्क है ना। ये है। नेक्स्ट करते हैं बात हम पहाड़ की, जो उत्तराखंड में रह रहा है या जो रही पहाड़ के पास रह रहा है, वो यामा होता है। यामा के यामा। पास, यामा। अब पहाड़ है तो झरना भी मुझे लगता है कि ज्यादातर होते ही है लगभग, तो झरने को बोलते हैं ताकी, ताकी। रिवर, आपको पता है झरना रिवर कावा, में फर्क है, कावा होता है रिवर। नेक्स्ट, ज्वालामुखी, काजान, काजान, ठीक है। ये है ज्वालामुखी, यहाँ से बढ़ता हुआ, ठीक है, काजान। देन वी हैव तालाब, तालाब को क्या कहते हैं? इके, 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 ठीक है। अब इके के ना बहुत सारे मतलब होते हैं जापानीज के अंदर भी, वो सारे मीनिंग है ना आपको कांजी से पता लगेंगे कि हम कौन सी कांजी यूज कर रहे हैं और कौन सी कांजी नहीं यूज कर रहे हैं, वो सारे उससे पता लगेंगे हमें, ठीक है। समुद्र, समुद्र मतलब होता है उमी, उमी, क्लियर है? हाई। नेक्स्ट, सुमीमा सेन। हाँ जी, सर मुझे एक चीज पूछनी थी, जो ना होता है ना, ना, हाँ जी। वो माना जाता है कि उसके ऊपर जोर देके पढ़ा जाता है, उसको ना नहीं पढ़ा जाता, पढ़ा जाता है उसको। किसको नहीं पढ़ा जाता है? ना को? पढ़ा जाता है, मतलब साउंड सर पूरी ना भी नहीं हाँ, रहता। सर वो एज की तरह होता है शायद वो। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुनिए, अब क्या है ना, हमारे पास कुछ, हम एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे कि जो तुम्हारे स्क्रीन बंद कर दो पहले, ठीक है। तो ऐसा कोई वर्ड बताएंगे पोलसन जिसमें आपको ऐसा लगा? हाँ, एक बार जरा क्वेश्चन फिर से पूछना, क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम था। आप क्या कह रहे हो कि जो ना है उसको में पढ़ा जाता है कभी कभार, में? क्योंकि सर उसमें हीरा गाना जब हम पढ़ते हैं ना, तो हाँ, सबसे नीचे आता है ना वो ना, तो वो एक्सपेक्शन माना जाता है उसको, पढ़ा जाता है उसको। देखिए, वो जो है ना, वो किस में होता है एक्सेप्शनल? वो होता है वाह की लाइन में, वाह, वो और जी जी सर। जो एन की लाइन है ना, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, इसमें 5 वर्ड आते हैं, ना, नी, नु, ने ने, और नो, नो। ठीक है। अब एक और मिलता जुलता वर्ड आता है जो कि एकदम एंड में मिलता है आपको, न की साउंड जिसमें होती है, न, उसको क्या पढ़ते हैं? ठीक है, ठीक है। वो लेकिन सर उसमें ना, ये जो था एंड में अभी आपने बताया, जो अभी मैं एक भी, वर्ड आया था, लेकिन उसके पीछे कुछ था नहीं, मतलब इतना तो मैं भी जानता हूँ ना सर कि उसमें वोवेल्स में ही कॉन्सोनेंट होता है उसमें, जैसे कि का, की, कू, के, को। लेकिन वो ना जो था उसके पीछे कुछ नहीं था, उसको वो पढ़ा जाएगा ना, जोड़ देगा, की साउंड देगा वो। अच्छा, एक बार मुझे आप वो वर्ड पढ़ के बताइए, कौन कहाँ पे था वो वाला वर्ड? अच्छा, ये वाला काजान, 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 काजान। ठीक है। अब अगर न के बाद ना होता या नी होता तो काजानी, काजानू, खाजानो पढ़ते, लेकिन वो तो नहीं है, तो नॉर्मल न है, तो काजान, काजान, ठीक है। जी जी। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पता है क्या, रीडिंग करते टाइम में ना, अगर आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन पे भी अच्छा फोकस देना है, क्या ध्यान देना है ना, तो आपको हर एक सिलेबल का साउंड पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 12th में वी हैव फैमिली नेम इन जापानीज,
ठीक है। दादा दादी को क्या बोलते हैं? सोफू, सोफू, सोबो, चीची, हाहा, सोबो, सोफू। इनको हम ये भी बोल सकते हैं, दोनों को, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर को भी हम ये बोल सकते हैं। अब आनी, आनी को बोलते हैं ओल्डर ब्रदर, आनी। ओतोतो को हमसे यंगर ब्रदर, यंगर ब्रदर। यंगर सिस्टर को वटी से इमोतो, इमोतो, इमोतो। लॉन्ग साउंड है। मो के बाद अगर आप जो यू देख पा रहे हो ना, वो जो यू है ना, वो लॉन्ग साउंड का यू है, ठीक है। वकारिमास्ता ने भी ना सा। हाय। नेक्स्ट इज आने। आने का मतलब होता है ओल्डर सिस्टर, older sister, ane. For example, I don't have ane, I have imoto, or I don't have oto oto, I have ani. कुछ भी चलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ ग्रामर पैटर्न्स की। ये ग्रामर पैटर्न पढ़ने से पहले हम एक चीज पढ़ेंगे जो कि बेसिक है। आप अभी ये वर्ड देख सकते हो ना, ठीक है। ओरे जोरे आ रहे, हाँ जी हाँ जी, ठीक है। अब देखिए, हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम पहले क्या बोलते हैं? हेलो, नाइस टू मीट यू। सो हाजी में माशो, हाजी में मास्ते, हाजी में माशो। हाँ जी, हाजी में माशो होता है लेट्स स्टार्ट, एंड हाजी में मास्ते होता है नाइस टू मीट यू। हाय। अगला वाता शिवा, यहाँ पे आपका नेम, देस, देस है ये, देसु नहीं पढ़ेंगे, देस पढ़ेंगे, देस। वाता शिवा, डौरो देस्का। यस, देस्ता नहीं, का तो फिर वो क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा ना। का तो क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा, का तो क्वेश्चन मार्क, अगर सेंटेंस के लास्ट में का लग रहा है तो क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा, ठीक है। हाय। नेक्स्ट, वाता शिवा शिवम देस, वाता शिवा इंदोजिन देस, ठीक है। मैं इंडियन हूँ, मैं इंडियन हूँ, ओके, आई एम इंडियन। नेक्स्ट, वाता शिवा निहोंगो ओ बेंक्यो शितेइमासु। आई एम लर्निंग जापानीज। अभी हम इसको पढ़ेंगे, किसको कैसे बोलना कैसे नहीं बोलना है। अब आपको ये खत्म करना है, मान लेते हैं आपको और कुछ नहीं बताना। योरोशिकु ओनेगाइशिमासु, मतलब कि इट वॉज अ प्लेजर टू मीट यू। आशा करेंगे कि अब से भी हम मिलते रहे, ठीक है ना। हाँ जी मैं मस्त है, किसी पर्सन को एक ही बार बोलते हैं ना फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो। हाँ जी, जब हम किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं ना तो हम उसको नाइस टू मीट यू बोलते हैं, उसके बाद हमें उसको बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाय। अभी मैं सबके आपको मीनिंग भी लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाताशी का मीनिंग क्या होता है? आई होता है। अब ये जो वाह है ना, ये क्या है? ये है हमारा सब्जेक्ट पार्टिकल, ठीक है। सब्जेक्ट पार्टिकल है हमारा। वाह से पहले वाला जो वर्ड आएगा वो वर्ड हमारा सब्जेक्ट होगा उस सेंटेंस का, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज एम आर, दिस का होता है इज एम आर, ठीक है, इज एम आर। नेक्स्ट, और क्या वर्ड है इसमें? इंदोजिन है ना, इंदोजिन, ठीक है। इंदोजिन, इंडियन, ठीक है। निहोंगो, जापानीज, ठीक है। यहाँ पे ओ लिखा हुआ आ रहा था कुछ, ओ, ऑब्जेक्ट पार्टिकल,
ऑब्जेक्ट पार्टिकल क्या होता है? अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? एक चीज पढ़ रहे होगे, वो चीज क्या है? वो चीज ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए हमने जापानीज लैंग्वेज के बाद ऊपर यहाँ पे ओ पार्टिकल का यूज किया, यहाँ पे ये रहा। निहोंगो के बाद। हाँ जी। नेक्स्ट बेंक्योशिमास भी तो था। बेंक्योशिमास होता है आई स्टडी, ठीक है, आई स्टडी। लेकिन मैंने जो ऊपर लिखा है वो तो मैंने लिखा है बेंक्योस्ते इमास, तो उसका क्या मतलब है? आई एम स्टडिंग हो जाएगा, दैट्स इट। बेंक्योस्ते इमास, आई एम स्टडिंग, ठीक है। Atashi wa nihongo benkyou shite imasu. In the last one, we use is yoroshiku onegaishimasu. So yoroshiku onegaishimasu is used when we end the Jiko Shokai, when we end Japanese introduction, we say yoroshiku onegaishimasu in the end of a sentence. Yoroshiku onegaishimasu. Onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. It was a pleasure to meet you. Let's meet again. Mitaina. Yoroshiku onegaishimasu. It was a pleasure to meet you. Hi. बताइए। It was a pleasure to meet you. ठीक है। Okay, मैसेज आया है। देवारिमासेन मीनिंग। Hi. Alright. See. यहाँ पे क्वेश्चन आता है दिस। हमने अभी पढ़ा दिस का मतलब क्या होता है? इज, एम, आर। दिस की नेगेटिव फॉर्म क्या होती है? जारिमासेन या देवारिमासेन, जिसका मतलब क्या हुआ? इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। क्लियर है? नेगेटिव होता है वो। हाँ जी, वो नेगेटिव होता है। जारिमासेन, देवारिमासेन। इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। वकारिमाशिता का minasan। हाय। ओके, प्रशांत सान, यस प्लीज। हाँ जी, पूछिए। मे भी इनको रियलाइज नहीं हुआ कि इन्होंने हैंड रेज कर रखा है, बस चलो के। हाय। देवा इज, एम, आर। जारिमासेन, देवारिमासेन is not, am not, are not. अब when we make this into the past tense, we say this. अच्छा तुम आते हैं चाहते दे दोजो योरशिकु मीनिंग। दोजो नहीं, दोजो z है, z। दोजो का मतलब सेम होता है, जैसे कि यहाँ लगा दीजिए दोजो। जितना बड़ा सेंटेंस उतनी ज्यादा पोलाइट। That's it. ठीक है। दोजो योरोशिकु ओनेगाइशिमासु। I hope it's clear. देशता, was और were। this की पास्ट फॉर्म होती है, ये this की पास्ट फॉर्म होती है। अब पास्ट नेगेटिव बनाए तो कैसे बनाए? पास्ट नेगेटिव कैसे बनेगी? जा देवारिमासेन देशता, या फिर देवारिमासेन देशता। यस, देवारिमासेन देशता। ठीक है, पास्ट नेगेटिव हुई है। इज इट क्लियर minasan? दाइजोबु desu का? हाय, दाइजोबु desu का? दाइजोबु desu ने। हाय, वकारिमाशिता। तो यहाँ तक अभी हमने ये सब पढ़ा है। लेट्स से पॉल सान, क्या ये 4 लाइन रिपीट कर सकते हो आप? ये हाजिमे मास्ते से लेके योरोशिको तक। हाजिमे मास्ते वाताशी वा अंकन देशु, वाताशी वा इंदोजिन देशु, वाताशी वा निहोंगो यो बेंक्यो शितेमासु, योरोशिकु ओनेगाइशिमासु। राइट। अब जापानीज में क्या होता है? जापानीज लोग डोंट से वाताशी 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 ईच एंड एवरी टाइम। सो व्हाट दे से हाजिमे मास्ते वाताशी वा शिबम देशु, इंदोजिन देशु,
निहोंगो बेंक्यो शितेइमासु, योरोशिकु ओनेगाइशिमासु। ठीक है, तो जब हम अपनी बात कर रहे होते हैं ना तो हम वाताशी यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब हम सामने वाले की बात कर रहे हैं तब हम सामने वाले बंदे का नाम यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? या हाई, ओके 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 ओके, वकारिमास्ता। तो ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद फिर से पुष्पेंद्र सान को तो ये शायद से पता है कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। हाय हाय, राहुल राणा सान, आप सुन सकते हो? राहुल राणा सान, हाय हाय, एक बार आप ये इंट्रोडक्शन रीड करके दिखा सकते हो मुझे, ये वाला? वाताशी वा मास्ते। हाय, ओके ओके, वकारी वकारी मास्ते, वकारी हाजी मास्ते का तो चोटो माते कुछ है सुमी मासेन। हाजी में मास्ते वाताशी वा राउरो देश, वाताशी वा इंडोजिन देश, वाताशी वा निहोंगो ओ बेंक्यो शितेमास, योरोशिको ओनेगाइशिमास। Yoroshiku onegaishimasu. It was a pleasure to meet you. Okay. हाय Hi, wakarimashita. Let's say hi. अब यहाँ पे आई होप आप सबको याद हो कि किसको क्या बोलते थे और कैसे कैसे बोलते थे। ठीक है, हाय। अब हम इसमें फिर से एक चीज यहाँ स्लाइड पे जाते हैं। तो अभी हम यहाँ पढ़ेंगे कि कोरे, सोरे और आरे का मतलब क्या होता है। कोरे, सोरे, आरे का मतलब हम बोलते हैं दिस, दैट एंड दैट ओवर देयर। ये हमारा थिंग्स के साथ यूज होता है, थिंग्स के साथ, ठीक है ना, थिंग्स के साथ। जैसे कि कोरे वा नाम दिस का, मैं अभी आपको वर्ड भी शेयर करता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए दोनों को समझने में। हाय, ठीक है, हाय, ओके। लेट्स से कोरे, कोरे वा नाम दिस का, व्हाट इज दिस? वो क्या है? इज यस, वो नान मतलब होता है व्हाट। बहुत अब कोरे के बाद वाह क्यों लगाए? क्योंकि कोरे तो हमारा सब्जेक्ट है। और वो पार्ट वा जो है अपना पार्टिकल है। यस, कोरे वा नाम दिस का, कोरे वा नाम दिस का, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, तो का वकारिमाशिता का। हाय, लेट्स से दिस इज अ बैग, कोरे वा नाम दिस, ठीक है, दिस इज अ बैग। सोरेवा, वो जो बैग है, वो जो है ना वो बैग है। सोरेवा बैग नहीं है, ये देखते हैं, बैग नहीं है। भगवान देवा आरिमासेन। यस, सोरेवा अबान देवा अरिमासेन, वेरी नाइस। सोरेवा कबान देवा अरिमासेन, ठीक है। हाय, ये मतलब होता है। अब कोरे होता है जो कि स्पीकर के पास होता है, लिसनर के दूर होता है, थिंग। सोरे होता है जो लिसनर के पास होता है और स्पीकर के दूर होता है। आरे होता है जो लिसनर और स्पीकर दोनों से ही दूर होता है, ठीक है। हाँ जी निखिल-san, प्लीज आस्क। सर हम ऐसे भी कह सकते हैं लाइक सोरेवा कबान जनाई देश। बिल्कुल कह सकते हैं, जनाई दिस भी कह सकते हैं। अभी जनाई क्या होता है? जनाई प्लेन फॉर्म होती है। प्लेन फॉर्म पढ़ने से पहले हम नाई फॉर्म पढ़ते हैं, नाई फॉर्म पढ़ने से पहले ते फॉर्म पढ़ते हैं, ता फॉर्म पढ़ते हैं, डिक्शनरी फॉर्म पढ़ते हैं, फिर प्लेन फॉर्म पे जाते हैं, ठीक है। लेकिन डरने की बात नहीं है, ये बहुत सिंपल फॉर्म्स है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके आएंगे ही। देखिए हर लैंग्वेजेस में ऐसा है, हर लैंग्वेजेस में है ऐसा। तो कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ोगे ना तो ये आएगा, ठीक है। सुमिमासेन। हाँ जी, आर्य में ना सर थर्ड पर्सन की बात हो रही है। हाँ जी। हाय, अच्छा,
आप कह रहे हो कि इसमें थर्ड पर्सन की बात हो रही है जी जी। ना? देखिए सुनिए सुनिए, आरे में अरे में ठीक है, अरे के अंदर ना जो चीज की बात हो रही है ना, वो एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है जो कि मेरे से भी दूर है और जो बंदा सुन रहा है उससे भी दूर है। ठीक है, मान लेते हैं कि मैं और पुष्पेंद्र सान साथ में खड़े हैं, ठीक है, या ज्यादा 1-2 मीटर की दूरी आपकी मेरे बीच में, और हम दोनों से दूर एक चीज रखी हुई है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ अरे यार वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, अरे वनानी, अरे वनांदिस्का, अरे वनांदा, अरे वनांदिस्का, अरे वनांदिस्का ना, कोई फुनी नहीं होनो खाता भाई वो使いますよ, तो उसको जापानीज इस तरीके से बोलते हैं जापानी लोग, ठीक है, एकदम वहां मिक्स। से अगर वहां से दूर से अपना फ्रेंड आ रहा हो तो उसमें भी तो हम ये बोलेंगे। ना 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 ना, यहाँ पे जो लगता है ना ये सिर्फ थिंग्स के लिए लगेगा, उसके लिए हम कुछ और लगाएंगे, ठीक है ना, थिंग्स के लिए अलग लगता है, पर्सन्स के लिए अलग लगता है, हर चीज के लिए अलग अलग है। वकारी मास्टर का मीना सा, ठीक, ऑलराइट, जब आप 1 महीना या कुछ अराउंड आप जापानीज पढ़ लोगे तो आप कुछ जापानीज में इंट्रोडक्शन देखना स्टार्ट करोगे। लेट्स से मैं अगर इंट्रोडक्शन देता हूँ अपना तो, हाजिमे मास्ते, वाताशी वा शिबम देसु, 4年間ぐらい日本語勉強してるんで、今日本語の先生として働いています。で、たくさん趣味があるんですが、一つの趣味で言ってみると、漫画を読んだり、ギターを弾いたりとかですね。では、今まで日本に行ったことがないんですけど、いつか日本に行くために今頑張って日本語勉強しています。ではよろしくお願いします。फुल स्टॉप। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको इस तरीके का इंट्रोडक्शन बोलने में, और बहुत अच्छा लगता है जापानीज के ना जो प्रोनाउंसिएशन होता है, दैट्स वेरी नाइस ना बहुत क्यूट लगता है। क्यूट लगता है, यस मुझे लगता है पर्सनली, सही होता तो सेम रोहित सान, मुझे भी सेम ऐसा ही लगता है। क्यों लगता है पता है क्यों? क्योंकि हमारी लैंग्वेज ना हिंदी है, और हिंदी से ना कितना मिलती है बोलते टाइम, इंग्लिश से बिल्कुल ऑपोजिट है। हाँ, इंग्लिश से एकदम अपोजिट है, लेकिन हिंदी में सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सेम है, ठीक है, और वर्ड भी सेम है। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि तोतेमो का मतलब होता है वेरी मच। अब तोतेमो को मैं हिंदी में लिख सकता हूँ, तो के ऊपर ऊ की मात्रा, ते के ऊपर ए की मात्रा, माँ के ऊपर आ का डंडा, लाइन खींची, तोतेमो। बाकी लैंग्वेजेस में नहीं बन सकता है ना। अब जैसे कि रशियन में होता है एक प्रिपोदिया, अब भैया इसको कैसे लिखेंगे हम हिंदी में, प्रिपोदिया दिया वतिल्या, तो वो नहीं हो पाता है ना देसियो ना मिनासा ना। ये तो थोड़ा ये ना बीच बीच में ना आपको थोड़ा सा मेरे अंदर से लगेगा कि कुछ जापानीज के वर्ड्स आ रहे हैं जो कि मुझे भी रियलाइज नहीं जो कि मेरे को भी जो कि मेरे को भी रियलाइज नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना मिनासा। हायそうですね。では、はい。हाँ जी चाइनीज लैंग्वेज ये अपनी जापानीज लैंग्वेज से कितना सिमिलर है? ना, नॉट सिमिलर, बहुत अलग है मेरे हिसाब से। कांजीज ऑलमोस्ट सेम ही लगती हैं, जब तक उसको प्रोनाउंसिएशन ना करे ना वो सेम ही लगती हैं। पुष्पेंद्र सान, प्रोनाउंसिएशन तो हटा के सिर्फ कांजी की ड्राइंग सेम है, मीनिंग 30% तक आइडिया लग सकता है, ग्रामर एकदम अलग है, वोकैब्स अलग है, सिर्फ पिक्चर लैंग्वेज हल्की सी सिमिलर है, दैट्स इट ना। ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। हाई ये है, लेकिन थोड़े अलग है। चाइनीज एंड जापानीज, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी इट इज रियली डिफरेंट। दायो, अब जैसे मैंने दायो बोल दिया बीच में, तो थोड़ी वो बोलते बोलते आना पड़ेगी दायो। अब ये दायो क्या होता है, मतलब मैं आपको कुछ नई इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ तो मैं दायो लगा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा पोलाइट फॉर्म में जाऊंगा तो मैं देसियो लगाऊंगा, देसियो, ठीक है, देसियो।
हाय वो कहता है। तो ये हमने पढ़ा था, कोरे सोरे आरे दिस एंड नॉन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है जो अभी हमने एग्जांपल्स पढ़े थे। कोरे वानान दिस का, कोरे वा स्माहो दिस, स्माहो इज अ स्मार्टफोन, सोरे वा रिंगो दिस, दैट ओदे ओ दैट इज एप्पल, सोरे वा तोके दिस, सोरे वा तोके दिस, अरे वा होन नो थेरेपी दिस, अरे वा निहोन नो थेरेपी दिस। सो दैट इज अ जापानीज टेलीविजन। सारा वही फॉर्मूला है जो अभी हमने पढ़ा है एज इट इज, ठीक है। सर हाँ जी सर पता कैसे करेंगे कि कहाँ पे सोरे लगाना है और कहाँ पे आरे लगाना है? ठीक है, अब देखिए ना, पहले हम चैट में देखते हैं क्या आंसर है यहाँ पे। हाय कैजुअल जापानीज, यस कैजुअल जापानीज एग्जैक्टली। अब आपका क्वेश्चन आया है कि कहाँ पे क्या लगाना है, ठीक है। हमें पता है कि कोरे सोरे आरे का मतलब क्या होता है। अब उसी के हिसाब से लगाओगे ना। मान लेते हैं मेरे पास ये बॉटल है, ठीक है। हाय मेरे पास ये बॉटल है, ये बॉटल पॉल सान के पास है। तो पॉल सान ने क्या करा, पॉल सान मुझे कह रहे शिवम सान ये क्या है, ये जो है ये क्या है, बॉटल है ना। तो पॉल सान क्या बोलेंगे, सोरेवा नाम देश का। अब पॉल सान सोरेवा क्यों बोलेंगे, क्योंकि स्पीकर कौन है, पॉल सान। लिसनर कौन है, मैं हूं। क्यों हूं, मुझे बोल रहे हैं। तो पॉल सान बोलते हैं सोरेवा नाम देश का, शिवम सान बोलते हैं कोरेवा बोटल देश। समझ गए। अब मैंने क्यों बोला कोरे, क्योंकि लाइन किसकी है, मेरी लाइन है कोरे बोलने की। क्यों है, मैं स्पीकर हूं, स्पीकर के पास ये ऑब्जेक्ट है, तो स्पीकर क्या बोलेगा, कोरे ही तो बोलेगा। अगर यही बोतल पॉल सान के पास होती तो मैं बोलता सोरेवा नाम जिसका, वो उल्टा हो गया ना एकदम से। अब मान लेते हैं ये बोतल मेरे से भी दूर है, पॉल सान से भी दूर है, तो हम दोनों क्या बोल सकते हैं, आरे आरे, क्योंकि स्पीकर से भी दूर है, लिसनर से भी दूर है। समझ गए। हाय यस। और बताइए, और कोई क्वेश्चंस किसी को इसके अलावा? नहीं है, ठीक है हम चलते अपना नेक्स्ट वाली पे। ये वर्ब है। अब वर्ब का पता कैसे करें कि यार ये वर्ड के अंदर है, ये जो है ये वर्ब है या नहीं है। तो वर्ड के अंदर अगर आप मस देख सकते हो, मस मस, तो वो हमारा वर्ब में होएगा। मस मस, देख रहे हो, मस 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 मस। अब इसके पीछे क्या लग रखा है, काकी मस ताबे मस नोमी योमी मस मी मस किकी मस इकी मस किमस शिमस बेंक्यो शिमस। To write, to eat, to drink, to do it, to see, to hear, to go, to come, to do, to study. That's it. इसके भी टेंसेस होते हैं ऑब्वियसली, बट इंग्लिश के जितने टेंसेस नहीं है इसके अंदर, इतनी गारंटी देता हूँ मैं आपको। जैसे कि ये है हमारे टेंसेस, वर्ब्स के टेंसेस हमारे ये होते हैं। सर मी मीन्स आई, और आई मी, यहाँ देखते हैं मी नहीं होता, मे होता है, मे मे, ठीक है मे। ये इंग्लिश में तो मी पढ़ते हैं, लेकिन जापानीज रीडिंग में इसको मे पढ़ेंगे, मा मी मू मे मो मे। ये रहा, ये सब एक है, मे, ठीक है। जापानीज इज वेरी इंटरेस्टिंग मैन, वेरी इंटरेस्टिंग। स्टार्टिंग में ना मेरे को बहुत मुश्किल लगती जब मैंने स्टार्ट करी थी जापानीज बोलना, स्पेशली कांजीज। हीरा खाना में तो मजा आता है, लेकिन कांजी से स्टार्ट होती है ना, ऐसा लगता है इसे छोड़ दो।
छोड़ दो। पहले की 100 कांजी में तो पुष्पेंद्र सान आप स्टोरी बना लोगे, बन के, चलो ठीक है, बन गया यार, बन गई। वो तो लेकिन सर मैंने चार्ट लगा रखा है तो उसमें तो थोड़ा थोड़ा हाँ मैं पिक्टोरियल लेता रहता हूँ। लेते रहते हो। ये है, ये है, ये है। लेकिन जैसे जैसे कांजीज आपकी बढ़ती रहती है वैसे वैसे आपकी स्टोरीज भी बढ़ती रहती है, लेकिन एक हद तक आपकी स्टोरी फिनिश हो जाती है। भाई कितना ही डायग्राम बनाओगे आप एक कांजी से, ये बताइए। मान नहीं लेते हैं। बुक सर उसमें तो मैंने बुक भी परचेज करी थी तो थोड़ा बहुत उससे भी पढ़ लेता हूँ। वेरी नाइस। तो क्या अभी आप क्या जॉब भी कर रहे हो, ये स्कूल है या कॉलेज है? हाँ कॉलेज है सर। कौन सा ईयर है अभी? सर मेरा अभी सेकंड ईयर स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, क्या फील्ड है, बीए, बीकॉम या फिर साइंस? बीबीए। बीबीए है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी आपने टाइम से तो सही स्टार्ट कर दिया है, सेकंड ईयर आपका खत्म होने वाला है, स्टार्ट होगा? अभी सर स्टार्ट होगा। तो ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर ही खत्म हुआ है फिर आपका। कॉलेज खत्म होते ही अपना आपका N2 हाथ में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्यों मैं बताते हैं। जापानीज में 5 लेवल होते हैं। N5 से N1 तक। N5 सबसे इजी, N1 सबसे मुश्किल। मुश्किल। ठीक है, मिनिमम हमें चाहिए होता है N3, इंटरमीडिएट तो हल्का सा चाहिए ही होता है। ठीक है, जब आप कॉलेज खत्म करोगे ना आपका N2 हो जाएगा। क्यों होगा, एक लेवल होता है हमारा 6 महीने का, मतलब जब साल में 2 बार होगा तो एक ही बार कर सकते हैं ना। जी जी। तो अभी आपके 2 साल है पूरे थर्ड ईयर होने के, मतलब 2 साल का मतलब क्या हुआ, 4 अटेम्प्ट, JLPT के 4 अटेम्प्ट। ठीक है, 4 अटेम्प्ट, हर एक अटेम्प्ट में एक एक लेवल। N5 अच्छे से दिया, N4 अच्छे से दिया, N3 अच्छे से दिया और N2 फिनिश। कॉलेज खत्म होते ही आपका N2 आपके हाथ में और जॉब आपके हाथ में। N2 खत्म कॉलेज के साथ साथ। ठीक है, बिल्कुल सर बिल्कुल। ये है। तो अच्छा है कि आप सबको कांजीज पसंद है, कांजीज पसंद नहीं है, वो अच्छी चीज है काफी। जिको शोकाई, अभी ये हमने पढ़ा था जिको शोकाई। जिको शोकाई क्या होता है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। जिको शोकाई, जिको शोकाई। नेक्स्ट, はじめまして。私はダッシュです。私は何々歳です。私は7歳です。I'm 7 years old. 私は20歳です。I'm 20 years old. 私は23歳です。I'm 23 years old. ダッシュに住んで、ブラケットできて、ダッシュに住んでいます。I'm living in India. インドに住んでいます。ठीक है, next. 私の趣味はダッシュことです。My hobby is to read something or is to watch something. उसमें आप यस कर सकते हैं. Only girls use atashi. काफी लोगों को पता है ये, काफी लोगों को पता है ना ये. Only girls use atashi. So this ना गर्ल्स होती है वो वाताशी नहीं बोलती, वो W हटा के सिर्फ आताशी बोलती है. हाजिमे मास्ते आताशी वा. लड़का है तो हाजिमे मास्ते वाताशी वा. वाताशी वा 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 और आ में फर्क आपको पता है क्या है क्या नहीं है. ठीक है, बोलते टाइम पे. नेक्स्ट, आई एम 23 years old. 私は23歳です。23 23 23 rightです。I live in India. インドに住んでます。My hobby is to play something. Then you say, yeah, I look forward to working with you. どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。Is it clear, 皆さん? हाय। ठीक है, तो ये है हमारा एक छोटा सा बेसिक N5 का, जिसमें आपने आज काफी कुछ सीखा, काफी कुछ इसमें पता लगाने के लिए, पता ना लगाने के लिए. ठीक है, यहाँ पे हमारी ये डेमो का जो थोड़ा सा बेसिक पार्ट है यहाँ पे हमारा खत्म होता है. तरुण सान थोड़ा लेट आए वैसे तो अभी फिलहाल, बट इट्स ओके. ठीक है, सो ये है होता है हमारा N5 का. अब बताइए अभी तक किसको कोई क्वेश्चंस, उसको कुछ पूछना हो तो. एनीवन? हाय, मैं पूछना चाह रहा था कि ये कोर्स यहाँ पे 3 months का है ना? हाँ जी, हाँ जी. एंड आप ही पढ़ाएंगे? हाँ, एक मैं होऊंगा और हमारे साथ 2 टीचर्स और होंगे, तो उनमें से 2 पढ़ाएंगे और मैं भी पढ़ा सकता हूँ. ठीक है,
बाकी के जो 2 टीचर्स है वो हमारे पास रहेंगे, तो वो भी पढ़ाएंगे आपको N5, ठीक है। ऑल्सो मैं भी 12th क्लास में हूँ, तो मैं भी कर सकता हूँ ना इसको, लाइक कोई ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जाना है, जॉब के लिए जाना है तो जरूरी है, बिकॉज आई वांट दिस टू बी माय हॉबी या ऐसा कुछ। समझ गया। तो 12th में तो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 6-7 से 6-7 में था ना यहाँ पे कोई, ठीक है, पता नहीं, मुझे लगता है वो खेलने चले गए लगता है। भाई ओके, तो 7th में होते तो ना दिक्कत आ सकती थी, क्योंकि भाई कितना याद करें। अब आधे तो मम्मी पापा बोलते भाई होमवर्क कर ले, तुम एनीमे देख रहे हो, उनके लिए तो कार्टून देख रहे हो तुम, ठीक है, तुम एनीमे देख रहे हो। तो आयुष्मान कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। अगर मैं आपको बताऊँ तो हॉबी के हिसाब से ना तो आप ज्यादा जल्दी पकड़ सकते हो, क्योंकि हॉबी में ना हमें कोर्स नहीं लगता है ना। इंटरेस्ट होता है, वैसे भी कंटेंट कंज्यूम करते होते हैं। एग्जैक्टली। और आपको ना उसमें लेवल्स में भी इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे कि भाई कुछ भी पढ़ा दे, बस ऐसा पढ़ाई कि लाइन वाइज पढ़ा है। ये N5 N4 ना एक लाइन वाइज पढ़ा है हमें, ठीक है ना। तो ये एक एग्जाम आपने भी बोला था 6 मंथ लगते हैं। देखिए, 1 साल के अंदर 2 बार एग्जाम होता है, एक जुलाई में, एक दिसंबर में। जुलाई और दिसंबर के फर्स्ट संडेज में हमेशा एग्जाम होगा, ठीक है। एक जो तुम्हारा लेवल होता है वो तुम्हारा 3 to 4 मंथ्स लेता है, ठीक है। अगर लेवल बड़ा है तो 4 to 5 मंथ्स ले सकते हैं, अगर लेवल छोटा है तो 3 मंथ्स में डन है। तो हम N5 3 मंथ्स में कर लेंगे। हाँ, हो सकता है। और इसमें आप कांजी के भी 4000-5000 वर्ड्स हम मेमोराइज करेंगे। नहीं, ना इतने नहीं होगा ना। N5 पढ़ोगे तो आपको सिर्फ याद करने हैं 180 के अराउंड समथिंग, बस। अच्छा, बस। और आप यहाँ पे 3 मंथ्स में हमको क्या क्या सिखाओगे सर? ये कांजी के अंदर सिखाओगे इतने वर्ड्स? देखिए मैं बताऊं, N5 तक का ही होगा। मैं बताऊं, N5 तक का ही होगा। क्यों होगा? अगर हम सीधा ही N4 पढ़ा दे तो N4 तो पढ़ा ही नहीं सकते, बहुत भारी हो जाएगा वो। तो भारी तो होएगा ही, प्लस समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक तो N5 में है। N4 कैसे करें, है ना। अब N5 में पढ़ेंगे क्या? हम N5 में पढ़ेंगे वोकैबुलरीज को कैसे करना है, उसके लिए ग्रामर पढ़ेंगे। उन ग्रामर को हम प्रैक्टिस कैसे करें, उसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अब उस ग्रामर की एक्सरसाइज भी होगी, फिर हम करेंगे कांजी की एक्सरसाइज करेंगे, फिर होगी लिसनिंग की हमारे पास वेबसाइट्स वगैरह है, उसमें से हम लिसनिंग सुनेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ठीक है। और आप लोग कोर्स मटेरियल कुछ दोगे? हाँ, कोर्स मटेरियल सारा ही से प्रोवाइड होगा, ठीक है। बाकी आपको जितनी भी डिटेल्स वगैरह वो आप RRJ में कांटेक्ट करोगे, आपको सारी मिल जाएगी। मटेरियल वगैरह सब आपको प्रोवाइड होगा, ठीक है ना। ऐसा है। बाकी इसमें जो यहाँ दे रखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाताशी एंड बोकू। वाताशी पोलाइट होता है, बोकू प्लेन होता है, कैजुअल होता है, जो कि लड़के लोग यूज करते हैं, मेल यूज करते हैं, फीमेल नहीं। बोकू। दूसरा, इंडियन पेरेंट्स डोंट नो व्हाट एनिमे एक्चुअली इज। ना, दे डोंट नो। ठीक है, तो उनको नो आइडिया नहीं लगता कि टाइम वेस्ट हो रही है वो, लेकिन अब क्या करें, कुछ नहीं समझा सकते ना। हाँ, नेक्स्ट इज लेक्चर्स हर रोज होंगे या 2-3 दिन के गैप में, ठीक है। वीक में 2 क्लासेस होंगी, ठीक है, 2 आवर्स की। तो तुम्हारी कितनी क्लासेस हुई, मतलब कि वीक में 4 आवर्स। हर रोज क्लासेस भी करें ना तो उसका फायदा नहीं। क्यों नहीं है? रोज का 2 घंटे का सिलेबस आप कैसे रिवाइज करोगे, ये बताइए, है ना। तो कितना प्रेशर बन जाएगा। ऊपर से लैंग्वेज ऐसी जिसमें 3 स्क्रिप्ट है। जो पढ़ाएगा टीचर, उसको तो रटा हुआ, तो आंखें बंद करके पढ़ा देगा। उसको बुक की भी जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ एक वर्ड देखना चाहिए, ठीक है, ओके, आंखें बंद, वीडियो बंद, बोला अपना बोलना स्टार्ट हो जाएगा। जो सामने सुन रहा है उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, ठीक है ना। सर, क्लास टाइमिंग्स मॉर्निंग पे होगी या इवनिंग में? क्लास टाइमिंग्स आपको जल्दी पता लग जाएगा, क्लास टाइमिंग कब होगी क्या नहीं होगी। वहाँ पे RRJ पे आपको पूरा टाइम टेबल दे रखा है कि क्लासेस कैसे है कैसे नहीं है, ठीक है, ऐसे करके। एंड आई हैड अ क्वेश्चन। हाँ जी। हमारे जो नेम्स हैं ये भी हम काताकाना में लिखेंगे ना? क्या हमारे, यस, नाइस क्वेश्चन। क्यों है?
काताकाना में क्यों लिखेंगे? आपके वर्ड है फॉरेन वर्ड्स और आप उनको जापानीज में लिख रहे हो, तो जापानीज के अंदर जो फॉरेन वर्ड्स लिखते हैं तो किस में लिखते हैं? काताकाना में लिखते हैं। हाँ, लेकिन जापानी लोग अपना नाम काताकाना में नहीं लिखते, अगर आपने रियलाइज करा हो, हिरागाना में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? जापानीज है ना, इस वजह हाँ, से उनके लिए वो नेटिव इसलिए। हाँ, उनकी कंट्री में नाम बना है। अब हमारे में लोग बनते हैं, मंदिर में गए, पंडित वंडित जो होते हैं वो अपना कुछ भी कुंडली से जो भी होता है वो यहाँ होता है, वहां पे भी होता है। वहां पे नाम लिखा कांजी में, हिरागाना में लिख दिया और कांजी में लिख दिया। ठीक है, इज इट क्लियर? वकारिमास्ता। हाँ, थैंक यू। ठीक है, वकारिमास्ता, आरिगातो। या कोचिरा कोसो, सेम हियर, कोचिरा कोसो आरिगातो गोजाइमास, है ना, ऐसा होता है। ठीक है, और बताइए और किसको क्या क्वेश्चन है किसी भी सर चीज? आपका ये जो नाम लिखा है शिवम, हाँ उसके हाँ, आगे जो कानी से बनी हुई है वो काताकाना में ना? ना 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 ना, दैट इज कांजी, दैट इज कांजी। कानी अभी बोल जो रहे है, थे। मैंने अपने टीचर से पूछा था जब मैं जापानीज पढ़ता था, मैंने बोला कि टीचर सेंस है, मुझे ना अपना नाम कांजीज में चाहिए, मेरे को ना कांजीज पसंद है, तो प्लीज थोड़ा जुगाड़ लगाइए, ये मेरा मीनिंग है मेरे नाम का। ठीक है, तो मैंने बोला कि मेरे नाम का मीनिंग है शिवम, तुम्हें पता है जो शिव शिव भगवान होते हैं, शिव शंकर जो होते हैं, उनका नेम होता है शिवम। तो मैंने बोला कि शी, VA होता है शी, तो जापानीज लोग बा बोलते हैं और मुंह बोलते हैं, म की जगह मुंह बोलते हैं, उनको एंडिंग करनी है क्योंकि म तो नहीं होता जापानीज में, माँ मी मुंह में मो होता है, तो वो मुंह पे उन्होंने एंडिंग करी, शी बा मुंह। तो उन्होंने मेरे नाम में 3 कांजीज लिखी। पहली कांजी है लायन की, लायन शेर कहते हैं। अगली कांजी है पंख की, फेदर, फेदर जिसे कहते हैं। अगली कांजी है वो है ताकेशी, ताकेशी मतलब समुराय, जो ताकेशी, हाँ यस समझ ताकेश, यस यस, निंजा थोड़ी देखा होगा जिसने, उसको पता होगा। हाँ उसको पता होगा। यस यस, ऊपर से उनको पता होगा जिन्होंने वो देखा होगा, ताकेशी कासल करके था ना, एक आता था पोगो पे, पोगो पे आता था। काफी लेजेंडरी शो। जनरली बहुत बहुत अलग था उसमें ना, जब आप N4 पढ़ोगे और N5 की एंडिंग पे आओगे ना, तो उसमें आप काफी चीजें पढ़ोगे। जो ताकेशी कैसल वाला जो था ना, पोगो पे आता था, उसमें काफी जापानीज वो बोलते थे। जैसे एक वर्ड था उसमें इके, इके, तो जब पीछे लाइन बनती थी, पीछे जब उसके बनते पीछे की लाइन बनती थी, तो जो डबिंग होती थी वो तो जावेद अख्तर ही करते, जहां तक मुझे याद है। ठीक है ना, लेकिन लेकिन जो जापानीज की जो होती थी वो बोलता था इके, इके मतलब चल अब तेरी बारी, 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 इके आगे चल, आगे चल, अब तेरी बारी, अब तू आगे चल। तो वो इके वैसे होता है। एक बार स्टार्ट करोगे ना, फिर नहीं छोड़ने वाले आप जापानीज, डेफिनेटली नहीं छोड़ने वाले। ठीक है ना, तो खरी मस्त था। हाई, और क्वेश्चन इसके अलावा? हाँ जी पूछिए तरुण साहब। या हाँ जी, मेरा क्वेश्चन रिगार्डिंग जॉब था, लाइक आई वांट गाइडेंस रिगार्डिंग जॉब सर्च एंड ऑल इन जापान। तो लाइक क्या प्रोसीजर लाइक फॉलो करना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए थोड़ा? ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए, अभी तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जॉब वॉब का क्या है क्या नहीं है। जॉब में हमें मिनिमम लेवल चाहिए होता है N3 के अंदर, N3 में मिनिमम लेवल चाहिए होता है। अगर आप किसी बैकग्राउंड से हो, जैसे ये IT से हो, ठीक, तो N3 हो गया, काम चल गया। लेकिन मान लेते आप IT से नहीं हो और जापानीज में जॉब ही चाहिए, तो एटलीस्ट N2 लीजिए हाथ में, या N3 है तो स्पीकिंग बहुत अच्छी रखिए फिर, बहुत अच्छी। ठीक है, दूसरी बात, क्या इंडिया के अंदर जॉब्स है या नहीं है? तो इंडिया के अंदर भर भर के जॉब्स हैं कंपनीज के अंदर। किन्हीं का पैकेज लो होगा, किन्हीं का हाई होगा, वो तुम्हारी क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करती है। क्वालिफिकेशन क्या है, जापानीज में तुमने कितने लेवल तक कर रखा है, कितनी तुमने वर्कशॉप, कितनी इंटर्नशिप, तुम्हारी जो फील्ड है वो क्या है, लैंग्वेज पे कितनी कमांड है, ठीक है ना, कितना एक्सपीरियंस है, कितनी फ्रीलांसिंग कर रखी, कितनी नहीं कर रखी, तो वो पे डिपेंड करता है। ओके, ठीक है, दूसरी बात अनुसार आप कहाँ पे रहते हो? आप दिल्ली में रहते हो या मुंबई, कहाँ पे? मैं भोपाल। भोपाल में रहते हो, ठीक है। तो भोपाल का मुझे आइडिया नहीं कि भोपाल में जॉब्स है या नहीं है, मुझे सही से हो तो मैं भोपाल नहीं गया कभी। ओके, आई एम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली के पास है गुड़गांव, आपको पता ही है। दिल्ली और गुड़गांव में बहुत जॉब्स है, ठीक है, ऐसा है। तो इस वजह से जॉब एज इन लाइक व्हाट काइंड ऑफ
I don't understand why job like Japanese companies hire from like or like jobs बहुत है मतलब like in India only ना you're saying. जॉब्स इंडिया में भी है, दिल्ली में भी है, गुड़गांव में है, चेन्नई में है, पुणे में है, महाराष्ट्र में है, काफी ऑल ओवर इंडिया काफी जॉब है। या लेकिन वो सब तो मेरे को like I want to get experience on like बाहर कैसे मतलब जापान में अगर थोड़ा बहुत like आपको like थोड़ा उधर स्टे करना है like I was planning to तो उधर then like उसके लिए गाइडेंस चाहिए था मेरे को। हाँ ठीक है like you can stay there for some time। हाँ देखिए, अगर आप N3 की में देखना चाहते हैं कि वहाँ पे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, एक बार मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ। देखिए डिपेंड करता है कि आप जापान जा रहे हो तो किस पर्पस के लिए जा रहे हो। या तो आप जॉब के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको एटलीस्ट N2 चाहिए होगा, लेकिन अगर आप पहले पढ़ाई के बेसिस पे जाते हो तो उसमें आपको कोई लेवल की जरूरत नहीं है, N5 से भी काम चलेगा। वहाँ से आपने किया, एक तुम्हारा जो रियूगाक से होता है एज अ फॉरेन स्टडी आपने पढ़ी जापान से, वहाँ पे पढ़ते पढ़ते आपको पार्ट टाइम मिलेगी और पार्ट टाइम करते करते जैसे आपका वहाँ पे पढ़ाई खत्म होगा वहीं से आपको फिर जॉब मिल जाएगी। ओके ठीक है ना, ऐसे होता है। वकारिमाशिता का ठीक है, ये है। बाकी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार जैसे भी आपके क्वेश्चंस होंगे जो भी होगा ना वो आप सब पूछेगा, जितना भी होगा जो भी काउंसलिंग वगैरह वो सब होगी, किसी भी चीज से रिलेटेड है। यहाँ पे एक बार प्रशंसा लिख रहे हैं कि N3 फेल हो जाए तो जॉब मिल सकती है। हाँ N3 अगर फेल भी हो जाए जॉब मिल सकती है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। अब आपकी स्पीकिंग भी नहीं है, N3 भी नहीं हुआ तो जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन स्पीकिंग है, लेकिन N3 रह गया तो जॉब मिल सकती है, ठीक है ना। N3 है और स्पीकिंग नहीं है तो जॉब नहीं मिलेगी। कंक्लूजन क्या हुआ, स्पीकिंग मेन है, फॉरेन लैंग्वेजेस है ना। यहाँ पे सबके पास ना N3 है, N2 है, N1 है, और जब उनका इंटरव्यू होता है ना तो उनको फिर प्रॉब्लम आ जाती है स्पीकिंग में, तो इसलिए थोड़ा कंपटीशन फिर कम हो जाता है वहाँ पे। तो जिनको पढ़ना ना शौक की तरह से पढ़ना और बढ़िया से स्पीकिंग करना और बढ़िया सी जॉब लेने का ऐसा है। पॉल सान क्या कह रहे हैं, सर जापान में लैंग्वेज स्कूल में डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकता है तो मैं N3 तक करके जाऊँगा। क्वेश्चन ठीक है, आप यहाँ से आपने N3 करा, N2 N1 आप जापान से कर रहे हो, लेकिन मेरा ये मानना रहेगा कि जब N3 तक कर लिया तो N2 N1 करना क्यों है जापान से। जब आपने इंटरमीडिएट कर लिया तो एडवांस अपने आप कर लीजिए। आप क्यों इतनी N2 N1 एक लैंग्वेज स्टडी करने के लिए आप दूसरी कंट्री जा रहे हैं जिसमें आपने ऑलरेडी एडवांस तक इंटरमीडिएट के एंड तक कर लिया। तो जब जापान जाना ही है N3 करने के बाद किसी एक MBA कर लीजिए जापान से, और उसके साथ साथ अपनी लैंग्वेज की स्टडी कर लीजिए सेल्फ में। N2 मटेरियल आपके पास सारा प्रोवाइड हो ही जाएगा, है ना। तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन नहीं रहेगा। अब फिर जापान स्कूल वाले पहले चेक करेंगे कि इस बंदे का लेवल N2 वाला है या नहीं है। अगर नहीं हुआ वो आपको N3 में डाल देंगे, फिर क्या होगा, फिर दिक्कत आ सकती है। मतलब दिक्कत नहीं आएगी, इट्स ओके, चले जाओगे, लेकिन जाना क्यों है। जब N3 यहाँ से कर लिया, हाथ पैर मार के N2 भी कर लीजिए, वहाँ से तो सीधा MBA वगैरह कर लीजिए। अगर जाना है तो फिर N4 में चले जाइए, वो इसका ज़्यादा फायदा है ना। ऐसा होता है, ठीक है ना। ठीक है, नीरा-सान वकारिमाशिता का इसमें लिखा है पॉल सान ने, क्योंकि मेरा सैमोंग गाकू में जाना है, और डायरेक्ट इंडिया से तो सैमोंग गाकू में नहीं जा सकते ना। ऐसा तो नहीं है जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, इंटरनेट है, वेबसाइट देखिए, जापान में स्कूल से देखिए जिस स्कूल में आपको एडमिशन लेना है, और वहाँ पे सब्जेक्ट देखिए जो सब्जेक्ट आपको उस यूनिवर्सिटी से पढ़ना है। उस यूनिवर्सिटी में मेल डालिए कि अपना फी स्ट्रक्चर बताइए, प्रोसीजर वगैरह बताइए, वो आपको सब बताएंगे। आप रिवर्ट बैक करोगे, कन्वर्जेशन चलेगी, वो फी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फिर वो चलता रहेगा। फिर COI आता है, फिर की डिटेल्स आती है, फिर वो डिटेल्स आती है, फिर आप कुछ बैंक मतलब कि ट्रांसफ़र करते हो, मतलब फिर कुछ मनी ट्रांसफ़र होता है, पैसे देते हैं, फिर जापान जाते हैं। तो वो भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। अब तो कोविड की वजह से नहीं जा पा रहे थे, लेकिन कुछ बंदों ने तो ऑनलाइन ही सैमोंग गाकू करा था। उनको नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा कि ऑनलाइन सब करने लगेंगे,
ठीक है ना, ऐसा होता है। वकारिमाशिता का, ठीक है। हाउ टू लुक जॉब इन जापान फ्रॉम द इंडिया आफ्टर बीटेक, ठीक है। ओके, अब जॉब्स इन जापान फ्रॉम इंडिया आफ्टर बीटेक। अब इसमें क्या होता है, अब लिंक्डइन अगर देखोगे ना तो लिंक्डइन में भर भर के बीटेक से रिलेटेड जॉब्स है रिलेटेड टू जापान या जापानीज, ठीक है। अब उसमें आप देखोगे ना, जैसे जैसे आप लैंग्वेज में स्टडी स्टार्ट करते हो ना, तब आपकी जान पहचान भी बढ़ती रहती है। इससे पता लगा, उससे पता लगा, इससे पता लगा। लिंक्डइन एप्लीकेशन है, इतनी अलग अलग एप्लीकेशन जिसमें आपको चीज़ें पता लगती है। मतलब जब इस लैंग्वेज की फील्ड में आ जाते हो ना, तो आपको यहाँ से रिकमेंडेशन मिलने लग जाती है, ग्रुप्स बनने लग जाते हैं, तो वहाँ से भी आपको ग्रुप्स को जॉब्स पता लग जाती है और जॉब्स है, ठीक है। वकारिमाशिता का, ठीक है। दाइजोबु देसु का? और कोई क्वेश्चन इसके अलावा नहीं है? मिनासान ओके, ई है ओके। प्रश्न का मतलब आप हिरागाना वगैरह पढ़ सकते हैं, दैट्स वेरी नाइस। तो जितनी जल्दी आप हिरागाना, जितनी जल्दी आप स्क्रिप्ट खत्म करोगे, उतनी जल्दी फायदा हो सकता है कि आप जापानीज की रीडिंग फास्ट कर सके, ठीक है। आप परमानेंट जॉब करते हैं जापान में? नहीं नहीं नहीं, मैं जॉब नहीं करता, मैं सिर्फ टीचिंग ही करता हूँ, ठीक है सर। एंड ठीक है, तो मैं सिर्फ टीचिंग ही करता हूँ, मैं परमानेंट जॉब तो नहीं करा, लेकिन देखते हैं कब करेंगे कब नहीं करेंगे, वो तब देखेंगे हम। जिसमें आपको जो भी क्वेश्चंस होगा आप बताना, ठीक है। वेबसाइट पे जिसको डिटेल चाहिए वो अब वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ से पता लगेगा, वहाँ पे नंबर है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करने का, ठीक है। तो अभी हम ये मीटिंग यहाँ पर हम एंड करेंगे, बाकी जैसे बैच स्टार्ट होंगे फिर हम वहाँ पे मिलते हैं सबके साथ, ठीक है। ओके, वर्किंग वीजा के लिए काम करते रहना पड़ता है ना? यस, वो तो है ही, हाँ जी। वो टाइम खत्म होगा तो अपडेट हो जाता है, फिर वो ऐसे चलता रहता है प्रोसीजर, खैर वो तो ठीक है ना, ऐसा है। तो ये है, बाकी हम जब बैच स्टार्ट होगा तब हम मिलते हैं फिर सबसे, ठीक है। तो मिनासान आरिगातो गोजाइमासिता, आज अच्छा लगा सबसे बात करके, बाकी फिर करते हैं, ठीक है। हाय, आरिगातो गोजाइमासिता। Arigatou Arigatou gozaimasu, sensei. हाय।